नेक्स्ट ਆਪਾਂ ने थ्योरम करनी है let A be a Noetherian ring and I is not equal to 1 means a proper ideal of A, then prime ideal which belongs to I are precisely the prime ideals which occur in the set of ideals I colon x for some x belongs to A। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि we have to prove that ये जो ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੈ ਵਿਚ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਵਿਚ ਅਕਰ ਇਨ ਦ ਸੈਟ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਈ ਕੋਲਨ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਨੋਥੇਰੀਅਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਥੇਰੀਅਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਰੈਡੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਡੀਕਲਸ ਆਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੇਣਗੇ, ਦੈਟ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਈ। सो मेनली आप प्रूव करना है कि ये जो सेट होएगा दिस विल बी इक्वल टू दिस सेट। ओके जी, सो नाउ कंटेनमेंट की तरह आप इसनू प्रूव करांगे। सो बाय फर्स्ट यूनीकनेस थ्योरम ऑन प्राइमरी डीकंपोजिशन। हुण तुहानू याद होए फर्स्ट डीकंपोजिशन फर्स्ट यूनीकनेस थ्योरम दे विच की प्रूव कीता सीगा आपां ने कि जो प्राइम आइडियल्स आंदे ने that are equal to the radical of I colon x means ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ radical of q colon x ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम आई सीगी ना अपने पास, लेट आई बी डीकंपोजिशन आइडियल विद मिनिमल प्राइमरी डीकंपोजिशन सी। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ then ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ एस आई इज इक्वल टू P1 P2 अप टू PN। ठीक है, तो ਇਹ ਜੋ एस आई ਸੀਗਾ, ठीक है, ये एस आई ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊ ਆਈ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਜੋ ਪੀ ਆਈਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਐਸ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਸ ਆਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦੀ, ਰੈਡੀਕਲ ਆਫ ਆਈ ਕੋਲਨ ਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸ ਆਈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਰੈਡੀਕਲ ਆਫ ਆਈ ਕੋਲਨ ਏ ਦੀ। ठीक है, सो इसका मतलब ये पूरा जो सेट है दिस विल बी इक्वल टू दिस सेट। तो फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम जो आप इत्थे यूज कर रहे हैं ये आप यही चीज़ लिखी हुई है कि दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट, आ वाला सेट। समझ गए? आई होप तुहानू हुण समझ आ गई होएगी। सो हुण आपां ये लिखण तो बाद की कहना चाह रहे हैं, लैट पी बी प्राइम आइडियल। ठीक है, सच दैट P इज इक्वल टू आई कोलन एक्स। मतलब कि ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦਿਸ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਸੈਟ, मतलब कि ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਹੋਗੀ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਜੋ P ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ P ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ P ਇਸ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ P ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ I ਕੋਲਨ X। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਰੈਡੀਕਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਰੈਡੀਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰੈਡੀਕਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, P ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PI, मतलब ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਈ ਸਟਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ P ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਫॉर ईच आई फ्रॉम 1 to n we have
क्यू आई इज़ नॉट द सुपरसैट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ क्यू जी। ये कित्थों आया? ये जो आपां आई दी मिनीमल प्राइमरी डिकंपोजिशन ली है, मिनीमल दी जो कंडीशन हुंदी सी उत्थों आया। ठीक है, मिनीमल दी जो सैकेंड कंडीशन सीगी। सो इसनों इंटरसैक्शन नूं आपां आर दा नाम दिता। ये याद रखियो कि इस इंटरसैक्शन नूं आपां आर दा नाम दे रहे हां, जिहदे विच जे इज़ नॉट इक्वल टू आई लिखा होया है, मतलब कि क्यू आई नहीं हैगा इहदे विच। सो हुण अगर ये क्यू आई इहदा सुपरसैट नहीं हैगा, इसका मतलब कोई ना कोई एटलीस्ट वन एलीमेंट एग्जिस्ट करेगा एक्स आई जो इस इंटरसैक्शन नूं बिलोंग करूगा, बट क्यू आई नूं बिलोंग नहीं करूगा। ठीक है, सो आई कोलन एक्स आई नूं की लिख सकते हैं आपां, आई दी वैल्यू पुट करती आपां, इंटरसैक्शन बाहर आ जाता हुंदा है। ठीक है, हुण जिहड़ी चीज़ इंटरसैक्शन है J1 to N सारे क्यू जे आ रहे इहदे विच। ठीक है, इंटरसैक्शन जो हुंदी है वो सिंगल एलीमेंट सिंगल सैट तो छोटी हुंदी है, तां करके आपां लिखता इट इज़ सबसैट ऑफ क्यू आई कोलन एक्स आई, क्योंकि ये तो इंटरसैक्शन सारिਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ हर एक क्यू आई कोलन एक्स आई तो छोटी होएगी। इंटरसैक्शन हमेशा छोटी हुंदी है। हुण जो आइडियल हुंदा है वो हमेशा आपदे रेडिकल च कंटेन करदा ही करदा है, इस करके आप आ लिख सकते हैं। ठीक है, हुण ये जो रेडिकल है दिस इज इक्वल टू पी आई। ठीक है, ये आप लैके ही चले आंगे, मतलब कि जो पी आई लै रहे हैं आप P1 P2 Pn। ठीक है, वो एक्चुअल च क्या ने रेडिकल ऑफ क्यू आई कोलन एक्स आई ने। आ देखो ना आप ऊपर जी फस्ट यूनीकनेस थ्योरम लिखी हुई है दिस वन, इत्थों लै रहे हैं आप। ठीक है जी, उस तो बाद देखो सॉरी इत्थों नहीं लै रहे आप, एक्चुअली आई एम सॉरी मिसटेक हो गई, ये आप इत्थों लै रहे हैं। आ देखो आ चीज़ प्रूव की है ना, एक्स आई नॉट बिलोंग्स टू क्यू आई। आप एक थ्योरम की सीगी जिहदे विच 3 पार्ट्स सीगे। ठीक है, एक्स आई नॉट बिलोंग्स टू क्यू आई जो हुंदा सीगा तां ओहदा रेडिकल जो है क्यू आई कोलन एक्स आई दा पी आई हुंदा सीगा। मैं तुहानूं थ्योरम दिखानी आ किहड़ी है। सी दिस थ्योरम, आ देखो इस थ्योरम दा सेकेंड पार्ट है, इफ x नॉट बिलोंग्स टू q then q कोलन x इज p प्राइमरी। ਇਹਦਾ मतलब रेडिकल ऑफ q कोलन x इज इक्वल टू p हो जाएगा अगर x उस q ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ नहीं कर रहा। तो ਇੱਥੇ भी ਆਪਾਂ जो लिख रहे ਆਂਗੇ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि एक्स आई ਆਪਾਂ लिख रहे हैं ना एक्स आई नॉट बिलोंग्स टू क्यू आई, ਤੁਸੀਂ राइट हैंड साइड ਤੇ देखो एक्स आई नॉट बिलोंग्स टू क्यू आई लिख रहे हैं, इसे करके ਆਪਾਂ ने रेडिकल ऑफ क्यू आई कोलन एक्स आई ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ है पी आई लिखा है। समझ आ गई जी। कोलन एक्स आई है, आ देखो इदा जाते जाते आ सबसैट हो गया, इदा सबसैट हो गया, यदा मतलब आई कोलन एक्स आई इज सबसैट ऑफ पी आई। ठीक है, हुण एक नोथेरियन रिंग है तो आपने एक थ्योरम की सीगी कि एवरी आइडियल कंटेन्स पावर ऑफ सम पावर ऑफ इट्स रेडिकल। तुहानूं याद होवे आपने एक थ्योरम करी सीगी। सो उस थ्योरम तो आपां की लिख रहे हैं पी आई एम कंटेन्ड इन क्यू आई। इसका मतलब क्या है कि क्यू आई कंटेन्स पावर ऑफ रेडिकल ऑफ क्यू आई, क्योंकि रेडिकल ऑफ क्यू आई क्या चीज़ है पी आई है ना। हाँ देखो रेडिकल ऑफ क्यू आई जो है वो पी आई है ना, तो रेडिकल ऑफ क्यू आई दी पावर कंटेन्ड इन क्यू आई। आप उस थ्योरम तो ये कंसैप्ट लिख रहे हैं, इतने रीजन लिख लियो ठीक है अपनी कॉपी ते। हुण आप आर नाल मल्टीप्लाई करता, इहदे विच क्या है आई जे इज कंटेन्ड इन आई इंटरसैक्शन जे हुंदा है ना, ये तो पढ़िया होया तुसीं, तां करके आई जे इज कंटेन्ड इन आई इंटरसैक्शन जे लगाता। ओके जी, उस तो बाद फिर आह चीज़ इत्थों आ गई राइट, एंड आर इंटरसैक्शन क्यू आई क्या है आई है, ये कित्थों आया आ देखो आ आर दी वैल्यू है, ये कला आई क्यू आई मिसिंग सीगा, क्यू आई आप इत्थे डालता तो की हो गया सारे आ गए क्यू आईज सारे आ गए, तो आई इज इक्वल टू इंटरसैक्शन ऑफ क्यू आई आई 1 to n। ये तो आप मिनीमल प्राइमरी डिकम्पोजिशन लैके चलिया, सो एक ही आ गया आई आ गया। सो नाउ हुण आप अगे की कह रहे ने कि इस सबसैट तो ठीक है ये सबसैट ऑफ आई हो गया। हुण ये कह रहे ने कि एम सब तो छोटा ले लो,
ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ m ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ। ठीक है, तो सब तो छोटा है सपोज कर लिया एम नोट, मतलब कि अगर एम नोट तो एक छोटा कर दिए तो आई च कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, सो अगर ये कंटेनमेंट नहीं हैगी, इसका मतलब की हो गया कि कम से कम एक एलीमेंट होएगा जो इस नू बिलोंग करूगा बट आई नू बिलोंग नहीं करूगा। ठीक है, सो इन पर्टिकुलर हुण आपां लै रहे हां एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई। आर दी वैल्यू पुट करती आपां ने इत्थे। ठीक है, अगर ये आई च नहीं हैगा, ठीक है, बट इंटरसैक्शन ऑफ क्यू जे, मतलब क्यू आई नू छोड़ के बाकी जिहड़ी इंटरसैक्शन बन रही है उहदे विच ये हैगा, तो इसका मतलब की हो गया कि एक्स नॉट क्यू आई च नहीं सीगा, तां ही आपां ये कह रहे हैं ना एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई। ठीक है, इन्हां दोनों नू मिला के आपां कह सकते हैं एक्स नॉट जो है क्यू आई नू बिलोंग नहीं करेगा। अगर क्यू आई नू बिलोंग कर गया तो इंटरसैक्शन ऑफ दिस क्यू जे नू भी बिलोंग करी जांदा है, इहदा मतलब तो सारियां दी इंटरसैक्शन नू बिलोंग करूगा ये। अगर सारियां दी इंटरसैक्शन ऑफ क्यू आई नू बिलोंग कर गया तो इहदा मतलब आई नू बिलोंग कर गया। ठीक है, बिकॉज आई इज इक्वल टू इंटरसैक्शन ऑफ ऑल क्यू आईज। सो ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक्स नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू आई, इस करके एक्स नॉट जो है इट विल नॉट बिलोंग्स टू क्यू आई। समझ आ गई जी। सो नाउ हुण जो आपां कंसैप्ट इत्थे लगाया सीगा कि अगर एक्स आई इनू बिलोंग नहीं करूगा दैन आई कॉलन एक्स आई कंटेन इन पी आई होऊगा। तो इस कंसैप्ट तो आपां की कह रहे हैं, आ देखो कि एक्स नोट अगर क्यू आई नू बिलोंग नहीं करेगा दैन आई कॉलन एक्स नोट कंटेन इन पी आई होगा। ये उस कंसैप्ट तो चक्या हुआ है। ठीक है, उसनू ना तुसी कोई नंबर दे दियो, कोई इक्वेशन नंबर 1 या 2 दे दियो ते इत्थे लिख दियो बाय 1। ठीक है, सो नाउ पी आई एक्स नोट इज कंटेन इन दिस, क्यों? क्योंकि एक्स नोट आपां इत्थे लिख चुके हैं बिलोंग्स टू दिस एलीमेंट, सॉरी दिस सैट। सो आ देखो दोनों साइड ते पी आई नाल मल्टीप्लाई करता तो लिख सकते हैं ना आप। ठीक है, हुण पी आई दी पावर इत्थे एम नोट -1 सीगी तो पी आई नाल मल्टीप्लाई करके की हो जूगा, इदा हो जूगा। ओके जी, तो आप ऊपर कह चुके हैं कि आर इंटू पी आई रेज़ टू पावर एम नोट कंटेन इन आई है, ये आप ऊपर कह चुके हैं। देखो दिस वन। ठीक है, सो इत्थों की आ गया अपने कोल पी आई एक्स नोट इज कंटेन इन आई। ठीक है, इसका मतलब फॉर ईच ए बिलोंग्स टू पी आई, मतलब कि एक पर्टिकुलर एलीमेंट के कोरस्पोंडिंग अगर कोई एलीमेंट ले लिए पी आई का दैन ए एक्स नॉट बिलोंग्स टू पी आई। इस कंटेनमेंट तो आप लिख सकते हैं, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आई कॉलन एक्स नॉट लिख सकते हैं कॉलन आइडियल की डेफिनेशन तो। ठीक है, हुण ए कोई भी आर्बिटरी एलीमेंट लिया सीगा, इसका मतलब पी आई इज कंटेन इन आई कॉलन एक्स नॉट। ठीक है, कन्वर्स पार्ट हो गया इहदा। आ देखो आ वाले नू नोट करो, इहदा कन्वर्स आप ऊपर लिख के आया ना, सी दिस वन, इन्हां दोनों तो ए इक्वल हो गया। ठीक है, आई कॉलन एक्स नॉट इज इक्वल टू पी आई हो गया। हुण इसका मतलब की हो गया, देखो इस चीज़ नू ध्यान नाल, इहदा मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब है कि की हो गया कि जो पी आई सीगा थोड़े पास वो तो इहदा ही सी ना, पी आई का मतलब ही की है P1 P2 अप टू Pn च कोई भी प्राइम आइडियल है। ठीक है, बट इन्हें कंडीशन आ वाली सैटिस्फाई करती, इहदा मतलब कि दिस सैट इज कंटेन्ड इन दिस सैट। ठीक है, तो इहदा आपां कन्वर्स पार्ट उपर कर ही चुके हैं तो आ इक्वल हो गया। ठीक है जी, यही आपां ने प्रूव करना सी। नाउ आफ्टर दैट डेफिनेशन ऑफ आर्टेनियन रिंग। सो जिवें आपां नोथेरियन रिंग दे विच एक असेंडिंग चेन नू स्टेशनरी कहा सीगा, है ना, एवरी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स इज स्टेशनरी। फिर आपां एक होर क्या सीगा कि अगर थोड़े पास कोई फैमिली है आइडियल्स की दैन उस फैमिली का एक मैक्सीमल एलीमेंट एग्जिस्ट करूगा, है ना। डेफिनेशन पढ़ी सी ना नोथेरियन रिंग की, इस तरह ही आर्टेनियन रिंग की डेफिनेशन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਚੇਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ
ਇੱਥੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਚੇਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਚੇਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, है ना। तो ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਆਫ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੈਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਮਿਨੀਮਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਚੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਨੋਥੇਰੀਅਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, है ना। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ रिंग ए इज सेड टू बी आर्टेनियन रिंग इफ इट सेटिस्फाइज द इक्विवेलेंट कंडीशन। मीन्स या तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दे या फिर सेकंड कर दे, कोई भी। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आइडियल्स इन ए हैज मिनिमल एलिमेंट, एंड सेकंड है एवरी डिसेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स इन ए इज स्टेशनरी। ठीक है जी। आफ्टर दैट proposition है, a quotient ring of an artenian ring is artenian। now quotient ले लो कोई भी, ठीक है, artenian ring ਦਾ। suppose I is a two sided ideal of ring A ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ quotient ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਆਰਟੇਨੀਅਨ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਥੇਰੀਅਨ ਰਿੰਗਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਨੀ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੇ ਆਫ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਫ ਐਸ ਹੈਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਮੈਂਟ। मतलब कि सिर्फ लैफ्ट आइडियल्स की फैमिली नू ही टर्मीनेट करना है तुसी, मतलब कि उस फैमिली का मिनीमल एलीमेंट शो करना है, समझ गए। सो नाउ एनी लैफ्ट आइडियल इस क्वोशंट रिंग का कोई भी लैफ्ट आइडियल किस टाइप का होगा, के बाई आई टाइप का होगा, वेयर के इज लैफ्ट आइडियल ऑफ ए कंटेन्ड आई, क्योंकि इस दे वास्ते के शुड कंटेन आई होना चाहिए है, ठीक है। सो हुण आपां सपोज कर ली एक फैमिली, सपोज जे इज अ फैमिली k बाय आई वेयर k बाय इज लैफ्ट आइडियल ऑफ ए, ठीक है। हुण k कंटेन्स करूगा आई नू ऑटोमैटिकली अगर एक क्वोशंट है। सो आपां इस फैमिली तो एक फैमिली होर बना सकते हैं, डेल्टा फैमिली ऑफ लैफ्ट आइडियल्स ऑफ ए कंटेनिंग आई, ठीक है जी। हाँ बना ली फैमिली। हुण ये जो फैमिली है ये किहदी फैमिली होगी, दिस इज द फैमिली ऑफ लैफ्ट आइडियल्स इन ए, बट ए इज आर्टेनियन रिंग, इसका मतलब इसका कोई मिनीमल एलीमेंट एग्जिस्ट करूगा जिसनों आप एल का नाम दे देंगे। अगर एल एग्जिस्ट कर गया, बिलोंग्स टू डेल्टा हो गया, तो एल क्या होएगा, लैफ्ट आइडियल ऑफ ए होएगा कंटेनिंग आई होगा, इसका मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू एल बाय आई एग्जिस्ट करूगा इत्थे, समझ गए। सो एल बाय आई है इज मिनीमल एलीमेंट एग्जिस्ट कर गया जे दा उस फैमिली का। सो इसका मतलब की हो गया ए बाय आई इज आर्टेनियन रिंग। यही आप प्रूव करना सीगा कि उस फैमिली का की होना चाहिए है, मिनिमल एलीमेंट होना चाहिए है। सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ आर्टेनियन रिंग। ये एक्चुअली मैंने पहला दसनी सी थोनू, बट ये मैनू बाद विच याद आया तो मैं बाद विच लिख रही हाँ, तो तुसी अगर नहीं लिखा तो तुसी पहला लिख लो, ठीक है। सो नाउ एग्जाम्पल ऑफ आर्टेनियन रिंग। हुण देखो एनी फील्ड इज आर्टेनियन रिंग, क्योंकि फील्ड दे विच सिर्फ दो ही आइडियल्स होंदे हैं, ठीक है, ट्रीवियल आइडियल्स 0 एंड ए। इस करके ये विच जो भी चेन बनूगी सिर्फ यही चेन बनूगी, होर तो कोई चेन बन ही नहीं सकती, ठीक है। सो इस चेन का इसनू डिसेंडिंग चेन कह सकते हैं आपां, इस चेन का है ना स्टेशनरी होना दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो रुक गई, टर्मीनेट हो गई, 0 तक खत्म होगी, बस उस तो पीछे तो जाएगी नहीं। सो यदि जो भी डिसेंडिंग चेन है वो स्टेशनरी है, इस करके बाय डेफिनेशन ऑफ आर्टेनियन रिंग दिस इज आर्टेनियन रिंग। सो हमेशा याद रखियो हर एक फील्ड की हुंदा है आर्टेनियन रिंग। इसका मतलब तुसी आर रियल नंबरस नू कह सकते हो, क्यू नू कह सकते हो, क्यू फील्ड हुंदा है, सी कॉम्पलैक्स नंबर के सैट नू कह सकते हो, ठीक है। ये सब आर्टेनियन रिंग्स की एग्जाम्पल ने। उस तो बाद है कि सब रिंग, सॉरी एक आप एक होर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो आर्टेनियन नहीं होएगी, तो सिंपल एग्जाम्पल है जेड। जेड दे विच सारे आइडल्स की नॉलेज तो थोनू हैगी है कि कौन बड़ा हुंदा है कौन छोटा हुंदा है ना। इदां आप एक चेन बना ली, हुण ये चेन थोनू पता है कि ये चलती जाएगी, ये इनफाइनाइट चेन है,
ये तो स्टेशनरी है ही नहीं, इसका मतलब ये आर्टीनियन रिंग नहीं है। फिर इसे तो ही हुण काउंटर एग्जाम्पल बन जाती है कि सब रिंग ऑफ आर्टीनियन रिंग नीड नॉट टू बी आर्टीनियन, कि हर एक आर्टीनियन रिंग का दे सब रिंग का आर्टीनियन होना जरूरी नहीं है। सो इस दे लिए आपां क्यू की एग्जाम्पल लै लैंदे आ, क्यू फील्ड है इस करके की हो जूगा आर्टीनियन रिंग हो जूगा, बट क्यू दी सब रिंग क्या है Z, जेड़ा कि आपां हुणी कह चुके हैं कि वह आर्टीनियन नहीं है। सो इट मीन्स सब रिंग ऑफ आर्टीनियन रिंग नीड नॉट टू बी आर्टीनियन। नेक्स्ट थ्योरम है इन एन आर्टीनियन रिंग एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। इस स्टेटमेंट को थोड़ा करैक्ट कर लियो कि एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। देखो कितना अच्छा रिजल्ट है, आर्टीनियन रिंग दे विच हरेक प्राइम आइडियल मैक्सिमल ही होएगा। नाउ सी लेट P बी प्राइम आइडियल, तो A बाई P क्या हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो A क्या है आर्टीनियन रिंग, तो क्वोशंट ऑफ आर्टीनियन इज आर्टीनियन, ये आप प्रूव कर चुके हैं। सो A बाई P की हो जाएगा आर्टीनियन हो जाएगा। यदि आप एक चेन बना ली इस तरह डिसेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब की हो जाएगा कि ये चेन टर्मिनेट करूगी, स्टेशनरी होगी। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कि नेचुरल नंबर्स का सेट है सच दैट ये चेन जो है स्टेशनरी हो जाए, मतलब टर्मिनेट हो जाए, मतलब कि x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। सारे इक्वल आने लग जाएंगे। इस दे इक्वल आने का मतलब की है कि x रेज टू पावर n नू तुसी मल्टीपल ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 लिख सकते हो। तो मैंने आ लिखता, इस तरह माइनस करती, आ कॉमन निकालता, हूँ x तो जीरो है ही नहीं सी, आप लैके चले नॉन जीरो एलीमेंट। सो इसका मतलब की हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज जीरो, इसका मतलब की हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब x इज यूनिट एलीमेंट। हुण अगर किसी रिंग दे विच मतलब इस क्वेश्चन दे विच अगर यूनिट एलीमेंट आ गया, नॉन जीरो एलीमेंट लिया सी, नॉन जीरो एलीमेंट की बन गया यूनिट एलीमेंट बन गया, मीन्स हर एक नॉन जीरो एलिमेंट क्या है यूनिट एलिमेंट है इन A बाय P, दैट मीन्स A बाय P इज फील्ड। ओके, सो इसका मतलब P इज मैक्सिमल आइडियल, यही आप प्रूव करना सी। नाउ क्रॉलरी, क्रॉलरी बहुत अच्छी है क्योंकि क्रॉलरी दी स्टेटमेंट इन्नी अच्छी है ना कि थोनों एग्जाम दे विच स्टेटमेंट ना क्रॉलरी दी आ सकती है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट देखो इन आर्टीनियन रिंग जैकोब्सन रेडिकल इज इक्वल टू नील रेडिकल। हम याद करो नील रेडिकल की डेफिनेशन आपा करी सी, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी प्राइम आइडियल्स, एंड जैकोब्सन रेडिकल की डेफिनेशन करी सी, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मैक्सिमल आइडियल्स। तो मैं थोनों क्या सीगा एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, है ना। तो मैक्सिमल आइडियल्स दी इंटरसेक्शन जो है वो बड़ी हो सकती है प्राइम आइडियल्स की इंटरसेक्शन तो, क्योंकि हर एक प्राइम आइडियल जो है वो मैक्सिमल तो नहीं हो सकता ना। इस करके जो नील रेडिकल हुंदा है वो छोटा हुंदा है जैकोब्सन रेडिकल तो। आ देखो आ लाइन जो लिखी हुई है इसका मतलब यही है कि इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम आइडियल्स ज़्यादा नहीं, ਉਹਦੀ इंटरसेक्शन छोटी हो जाएगी इंटरसेक्शन ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स तो। इस करके नील रेडिकल तो सबसेट जैकोब्सन का हुंदा ही है, हमेशा ही हुंदा है, ठीक है। बट हुण आपां जो प्रूव कर चुके हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि एवरी प्राइम इज मैक्सिमल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आपां ये प्रूव करता। देखो आ जी उपर थ्योरम करी आपां ने एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल, इसका मतलब की हो गया, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया क्या कंटेनमेंट भी होगी, मतलब ओबीयसली आ चीज़ होनी है, ठीक है। एवरी प्राइम इज मैक्सिमल, तो मैक्सिमल का प्राइम होंदा ही है, आ चीज़ तो ओबीयसली होगी ना। इट मीन्स जैकोब्सन इज इक्वल टू नील रेडिकल, सिंपल। नेक्स्ट है इन एन आर्टीनियन रिंग हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स, मीन्स कोई भी तुसी आर्टीनियन रिंग लोगे वो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स होंगे, मतलब कि कुछ फाइनाइट नंबर होएगा उन्होंने, जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, ठीक है। सो नाउ बहुत ही ईजी प्रूफ है। देखो आप सपोज कर लिया सिग्मा बी फैमिली ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स, मतलब ये किस तरह की फैमिली है, ये किस तरह की फैमिली है जिहदे विच मैक्सिमल आइडियल्स की इंटरसेक्शन हो रही है। जिवें उहदे विच मैं लिख सकती हाँ M1 इंटरसेक्शन M2, ठीक है, M2 इंटरसेक्शन M3,
या मैं तिन्ना दी इंटरसैक्शन लिख सकती हाँ, M1 इंटरसैक्शन M2 इंटरसैक्शन M3, इस तरह के सारे एलीमेंट्स हैं उहदे विच। समझ गए? सिग्मा बी फैमिली ऑफ फाइनाइट इंटरसैक्शन ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स। नाउ सिंस ए इज आर्टीनियन रिंग, अगर ए आर्टीनियन रिंग है तो इस फैमिली का एक मिनिमल एलीमेंट एग्जिस्ट करूगा। ठीक है, आप सपोज कर लिया वो मिनिमल एलीमेंट है दिस। ठीक है, हुण आप सपोज कर लिया कोई भी आर्बिटरी एम मैक्सिमल आइडियल सपोज कर लिया, वैसे ही सपोज कर लिया। ठीक है, हुण इहदी इंटरसैक्शन करती, इहदी इंटरसैक्शन एम नाल करती। समझ गए? हुण तुसीं सोचो इंटरसैक्शन जो आप करते हैं उदों वो चीज़ छोटी हो जाती है ना, तो एम नूं जदों इहदे नाल इंटरसैक्ट करिया तो आ पार्ट छोटा हो जाऊगा ए वाले पार्ट तो, ओबवियसली छोटा हो जाएगा ना। तो हुण इहदे छोटे होने का क्या मतलब है कि ये तो मतलब आप कह रहे सी कि ये तो मिनिमल एलीमेंट है, ये तो ऊपर आ देखो, ये तो आप कह रहे सी मिनिमल एलीमेंट है, बट ये तो छोटा की हो गया आ गया, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ਇਹਦਾ मतलब की होगा ये दोनों सेम होंगे, ਇਹਦਾ मतलब समझ गए, ये दोनों इक्वल होंगे इसका मतलब। सो हुण तुसी सैट थ्योरी का रिजल्ट याद करो कि जदों आ देखो ए इंटरसैक्शन बी इज इक्वल टू बी होवे तो उतों उदों उहदा मतलब की हुंदा सीगा। सोचो, दिमाग लगाओ कि ए ते बी दी इंटरसैक्शन कीती ते बी ही आ गया, ਇਹਦਾ मतलब ए ते बी चो छोटा बी सीगा, ਇਹਦਾ मतलब बी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही बैठा सी, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आए केस बनूगा ना। देखो अगर ਇਹ ਨੂੰ ए लै रही मैं तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B होगा, ताई A इंटरसैक्शन B इज इक्वल टू B आऊगी, अदरवाइज किमें आ सकती है। सो B इज कंटेन्ड इन A। सो इस कंसैप्ट तो थोड़े दिमाग च देखो की आंदा है, आ देखो इनू A लै लो, A पूरी नू B लै लो। सो A इंटरसैक्शन B इज इक्वल टू B आ गई। सो इसका मतलब B इंटरसैक्शन A का मतलब दिस B इज कंटेन्ड इन A, सो दिस B इज कंटेन्ड इन A। समझ गए? सो हुण इत्थे आपां यूज कर रहे हैं दिस थिंग, ये कित्थों आई, ये आई प्राइम अवॉइडेंस लैमा तो। ठीक है, अपनी कॉपी च प्राइम अवॉइडेंस लैमा खोल के देखियो, उहदे 2 पार्ट सीगे, उसदे सैकेंड पार्ट नूं यूज कर रहे हैं आपां। ठीक है, उसदे सैकेंड पार्ट तो अगर प्राइम आइडियल्स की इंटरसैक्शन पी दे विच कंटेन करेगी दैन ईच पी आई विल कंटेन इन पी। सो उस रिजल्ट तो आ गया एम आई इज कंटेन इन एम। सो इट मीनस हुण देखो एम आई भी मैक्सिमल आइडियल्स है तो एम भी मैक्सिमल आइडियल्स है। मैक्सिमल आइडियल कदे भी किसी भी बड़े आइडियल च कंटेन नहीं करता। एम आई मैक्सिमल आइडियल है तो वह एम च कंटेन नहीं कर सकता। ठीक है ना, अगर इस तरह की कंडीशन आती है दैन यू बोथ ऑफ दैम आर इक्वल, इट मीनस एम आई इज इक्वल टू एम हो गया। ਇਹਦਾ मतलब की होया, हुण देखो ਇਹਦਾ मतलब की होया कि आपां जो एम लिया सीगा डिफरेंट लिया सी इन्ना सारे एम आईज तो, है ना। आपां जो एम सपोज करिया सीगा कोई भी आर्बिटरी मैक्सिमल आइडियल सपोज करिया सी भी सानू नहीं पता हुण इहदे विच मैच भी कर सकदा नहीं भी मैच कर सकदा, बट इन दी एंड अपने पास क्या आ गया कि ओह इन्ना दे विचों एक मैक्सिमल आइडियल है, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है, वो इन्हां दे विचों ही आ गया। समझ गए? इसका मतलब की होया कि इस आर्टीनियन रिंग दे कोल सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ही होंगे। ठीक है ना, सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ही होंगे। तुसी खुद सोच के देखो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स होंगे तो उन्होंने सब दी इंटरसैक्शन करते करते मतलब तुसी सोचो कि मैनूं लगता है कि बहुत ही छोटा हुंदे हुंदे छोटा हुंदे हुंदे उहदा मिनिमल एलीमेंट बारे सोच सकते हो कि की हो सकता है वो, मतलब थोड़ी जी जजमेंट तुसी कर सकते हो। सो इस प्रूफ तो प्रूव हो गया कि आर्टीनियन रिंग दे कोल सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ही होंगे। अगर कोई डाउट होए तो पूछ लियो। थैंक यू।